Good afternoon, dear student. Before classes, history chapter 1 finished, and today class is chapter 2 start. Chapter's name New Kings and Kingdoms. New Kings and Kingdoms. So now let us see the books. Open the books and listen me and see the book. ओके, अपनी बुक खोल लीजिए, ओपन कीजिए और देखिए चैप्टर 2 न्यू किंग्स एंड किंगडम्स. सी द ब्लैक बोर्ड. न्यू किंग्स एंड किंगडम्स. इसमें हम सामंताज हुए, सामंताज, महासामंताज और महामंडलेश्वर एंड महाराजा अधिराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती and rent. Today class is this topic and revenue about the study. Okay, so now start the chapter 2. See the book. Many new dynasties emerged after the 7th century. Map 1 shown the major ruling dynasties in different parts of the subcontinent between the 7th and 12th centuries. So see the one map. टेक्स्ट बुक में देखिए वन मैप दिया गया. सी द वन बुक. इस मैप को देखिए. सी द मैप एंड हाउ मेनी डायनेस्टीज. हाउ मेनी डायनेस्टीज. सो सी द मैप. दिस मैप. दिस मैप इज इंडियाज मैप. दिस मैप इज प्रेजेंट टाइम मैप and your textbook map is old time map. To see the present time map and old time map difference. तो जो old time map था उसमें जो एम्पायर डायनेस्टीज इमर्ज थी वो थे उसे चौहान्स की डायनेस्टी थी. चौहान्स डायनेस्टी. सी द बुक में आप देख रहे हैं चौहान डायनेस्टी गुजरात एंड कन्नौज. ये दिस पार्ट इज द चौहान डायनेस्टीज. सी द गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली एंड some part of UP. She is the Chauhan dynasties. And this part is see the कौन Kumarapura. This part and this part South Indian part is Rashtrakoot. This part is Empire of Rashtrakoot and this part of Empire of Kerala, Tamil Nadu part of Chols and this part of Kalinga. Yeah, this part is Kalinga. So see the map में आपके दिया गया है कि चौहान्स, राष्ट्रकूट, चोल्स एंड कलिंगा. ठीक. ओके. See the book and side part. Locate the Gujarat process. Locate the
गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट, पाल्स, चोलाज and Chauhamans. Can you identify the present day state over which the exercise control? तो प्रेजेंट टाइम एंड ओल्ड टाइम में जो डायनेस्टीज थी वो इस तरीके से, पहले स्टेट इस तरीके से नहीं बटे थे, लेकिन जब अब स्टेट जो है, हर स्टेट अलग है, कोई एम्पायर नहीं है, यहाँ पर जो है संविधान के थ्रू सारी चीज़ें प्रोवाइड होती हैं। पहले क्या था, पहले एम्पायर होते थे, अब क्या है, अब जैसे प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट हैं। ओके, अब आगे द एमरजेंसी ऑफ न्यू डायनेस्टीज। अब न्यू डायनेस्टीज कैसे कैसे आई? बाय द 7th century देयर वेयर बिग लैंड लॉर्ड्स और वॉरियर चीफ इन डिफरेंट रिलीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ओके, एग्जिस्टिंग किंग्स ओपन एक्नॉलेज देम एज देयर subordinate or Samantha. What is Samantha? Who is Samantha? So Samantha was the, see the white board. Samantha, see subordinate of kings are the subordinates of kings are overlord who used to bring gift for their king or overlords. Okay, who is Samantha? Samantha is the subordinate of kings or overlord who used to bring gift for their king or overlords. So, she is Samantha. आगे नेक्स्ट, they were expected to bring gift for their kings or overlords. Okay, she is the Samantha. आगे, be present at their courts and provide them with military support. तो क्या था, उनको मिलिट्री सपोर्ट होता था। as Samantha's gained power and wealth, पावर होती थी, वेल्थ होता था, they declared themselves to be महासमंथाज, महामंडलेश्वर, what is महामंडलेश्वर? the great lord of the circle of region. जो ये पूरी सर्किल का जो रीजन, जो सर्किल होता था, रीजन होता था सर्किल का, उसका जो एम्पायर होता था, उसे क्या कहा जाता था? महामंडलेश्वर. ओके, महामंडलेश्वर. ओके, सो एंड सो ऑन. समटाइम्स दे assisted their independence from their overlords. तो महासमंथाज और महामंडलेश्वर, who was the महासमंथा और महामंडलेश्वर. तो see the समंथा who gained power and wealth, इनके पास पावर होती थी, वेल्थ होती थी, declared themselves महाबलेश्वर और महासमंथा. ओके, is that the great lord of a circle or region. जो मैंने अभी सीधा मैप में हमने भी बताया कि जो पूरा सर्किल होता है, उसका जो एक एम्पायर होता था, उस अपने आप को क्या कहलाता था?
Mahasamantha or Mahamandaleshwar. Okay. Now then, the textbook. See the textbook. Next, once such intense was that of the Rashtrakuts in the Deccan. This part is Deccan. See the blackboard map. This part is the Deccan. Deccan Plateau आप ज्योग्राफी में क्लास 6 में रीड किए हैं, तो सी पार्ट ऑफ द डेक्कन ट्रैक. ओके, आगे. आइडेंटली दे वेयर सबऑर्डिनेट टू द चालुक्याज. यहाँ पे किसका कौन एम्पायर था? चालुक्याज. डेक्कन में कौन थे? चालुक्याज थे. ओके, आगे. ऑफ कर्नाटका, ये डेक्कन का पार्ट जो है वो कर्नाटका में आता है. इन द मिड 18th century, Dantidurg, a Rashtrakoot chief, overthrew his Chalukya overlord and performed a ritual called Hiranyagarbha. Who is Hiranyagarbha? So literally the golden bomb. हिरण्यगर्भ किसको कहते थे? गोल्डन बॉम्ब को. गोल्डन बॉम्ब. ओके. When the ritual was performed with the help of Brahman, it was through to lead to the rebirth, okay, of the sacrifiers as a Kshatriya, even if he was not one by birth. सीमेंथ जो क्षत्रिय होते थे वो क्षत्रिय कुल में ही बर्थ लेना जरूरी नहीं था. क्षत्रिय का काम क्या था? युद्ध करना, बैटल वार करना. ओके. नेक्स्ट, इन अदर केसेस men from enterprising families used their military skill to carve out kingdom. वो क्या करते थे? वो मिलिट्री स्किल में भाग लेते थे. आगे. फॉर इंस्टेंस द Kadamba, Mayusraman, and the Gujarat Gurjar Pratihara, Harishchandra were Brahmans who gave up their traditional professions and took to arms. Successfully established kingdoms in Karnataka and Rajasthan respectively. मतलब कि आई मीन्स कि वो जो एरिया था वो कर्नाटका एंड राजस्थान, दिस पार्ट इज कर्नाटका, दिस पार्ट कर्नाटका एंड दिस पार्ट इज राजस्थान, ये दोनों पार्ट में स्टेब्लिश थे. ओके. नेक्स्ट पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स, मतलब कैसे वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन था. Many of their new kingdoms adopt high sounding titles such as Maharajadhiraj. Who is the Maharajadhiraj? Maharajadhiraj, a high sounding title used for great king over lord. Who is the Maharajadhiraj? Maharajadhiraj is a high sounding title used for great kings over lord. Okay. Again, great king over lord of kings, Tribhuvan Chakravartin. Next part, Tribhuvan Chakravartin.
अब त्रिभुवन चक्रवर्ती क्या होते थे? लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ल्ड्स, लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ल्ड मतलब तीनों संसार के स्वामी, लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ल्ड्स। ओके, त्रिभुवन चक्रवर्ती मीन्स लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ल्ड्स। ओके, आगे see the index. Do you think being born as Kshatri was important in order to become a ruler during this period? क्या उस समय में जो क्षत्रिय थे, क्या आज भी क्षत्रिय का वही काम? इसके बारे में सोचो। And this picture is अजंता केव। अजंता केव प्लेस कहाँ पे है? अजंता केव, वेयर इज अजंता केव? तो कहाँ पे है? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के मुंबई के पास, नियर ऑफ द मुंबई। कौन है? अजंता केव। अजंता केव में बहुत सारी डायग्राम बने हुए हैं, कलाकारी की गई है, आर्ट की गई है, आर्टिस्ट। तो जो यहाँ पर ये दिखाई गई है जो कलाकृति आर्ट, वो है केव नंबर 15 का विष्णु अवतार, नरसिंह भगवान का रूप दिखाया गया है। वो केव नंबर इसमें दिखाया गया 15। ओके, आगे चेंज पेज, नेक्स्ट पेज, आगे चलते हैं हम। They often shared power with their samanthas as well as with association of peasants. Peasants होते थे traders and brahmans. ओके, कौन कौन होता था? Associated of peasants, traders and brahmans. Okay, in each of their state, these resources were obtained from the produce that is peasants, cattle keepers, artisans who were often pressured or compelled to surrender part of what they produced. Sometimes these were claimed as rent due to the lord, who asserted that he owned the land. Revenue was also collected from traders. तो इसमें क्या बताया? रेंट कौन कौन से देते थे? तो रेंट देते थे कौन कौन? द पार्ट ऑफ, व्हाट इज रेंट? तो द पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट दैट द प्रोड्यूसर्स, द पीजेंट्स। कौन देता था? पीजेंट्स, cattle and keepers, artisans were compelled to pay to the lords. तो रेंट कौन देता था? The part of the product that he produced, the peasants, cattle keepers, artisans were compelled to pay to the lords. Compelled means उनको विवश करना, जबरदस्ती करना, जबरदस्ती उनसे क्या करते थे? रेंट ले लेते थे। पीजेंट्स, कैटल्स, कीपर्स, आर्टिसियंस से इनसे जबरदस्ती हठपूर्वक रेंट ले लेते थे। आगे 400 टैक्सेज,
400 टैक्सेस की व्यवस्था थी उस समय। द इंस्क्रिप्शन ऑफ द चोलाज हु रूल्ड इन तमिलनाडु। तमिलनाडु इस पार्ट में, दिस पार्ट इज तमिलनाडु, ओके, तमिलनाडु। रेफर टू मोर देन 400 टर्म्स। उस समय कितने थे? 400 टर्म्स थे फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस। डिफरेंट टाइप के 400 डिफरेंट टाइप के टैक्स थे। द मोस्ट फ्रीक्वेंटली मेंशन्ड टैक्स इज बिट्टी। उसमें कौन था? बिट्टी। बिट्टी टेकन नॉट इन कैश बट इज द फ्रॉम ऑफ फोर्स लेबर। बिट्टी जो था वो टेकन नॉट इन कैश बट इन द फ्रॉम ऑफ फोर्स लेबर and kadamai or land revenue. Okay, there were also taxes on that things, the houses, the use of ladder to climb. Ladder to climb means climb plum tree. Plum means समझ रहे हैं? खजूर, ताड़, नारियल। ओके, ए केस ऑन सक्सेस ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी ETC। तो उनको क्या करता था? 4 टाइम का टैक्स, 400 टाइप का टैक्स होते थे जो कि जो ताड़ के पेड़ पर चढ़ते थे उनको भी देना पड़ता था और जो फैमिलियर थे उनको भी देना पड़ता था। तो क्या आप बता सकते हैं कि उस टाइम के जो टैक्सेस थे 400 टैक्सेस और इस टाइम प्रेजेंट टाइम क्या डिफरेंस है? क्या आप बता सकते हैं? इस समय कौन से टैक्स देने पड़ते थे और उस समय कौन से टैक्स देने पड़ते हैं? तो सी द थिंकिंग, सोचिए, सोचकर बताइएगा। ओके, टेल मी अबाउट थिंकिंग। ओके, कैसे कलेक्ट करते थे, आज क्या कलेक्ट करते हैं कैसे टैक्स, और उस समय के टैक्स में क्या डिफरेंस। आगे, दीज रिसोर्सेज वेयर यूज टू फाइनेंस टेकन टू द किंग ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। तो इसमें दिस पार्ट में रेवेन्यू की बात की गई है कि उस समय का रेवेन्यू कैसा था। तो उस समय का जो रेवेन्यू था वो हम आपको रेवेन्यू के बारे में बताते हैं। रेवेन्यू उस समय द टैक्स ऑफ ट्रेडर्स हैड। रेवेन्यू उस समय, रेवेन्यू क्या था? द टैक्स ट्रेडर्स हैड टू पे टू देयर लॉर्ड्स। किसको टैक्स अदा किया जाता था, पे किया जाता था? जो ट्रेडर्स थे, ट्रेडर्स, व्यापारी। ओके, the tax traders had to pay to their lords. Okay, this video is today complete the part of 1 and next video में हम स्टडी करेंगे about the study प्रशस्ति and land grant. Okay, तो see the video and enjoy. Okay.